The next part of the video, and probably the last video I'm going to take in the continuity and differentiability. I'm going to take some question from miscellaneous exercise of the chapter 6. Chapter 6. In this miscellaneous exercise, there are questions from first question, maximum approximation. Second is maximum, and then we are going to discuss about the equation of normal as well as increasing decreasing maximum minima. So as we have discussed the problem of maximum minima of exercise 6.5, so continuity, making it continuity, I am going to take the problems of maximum minima from this very exercise. So very first question I am going to take the question number 11. Question number 11. I am just summarizing it. I am not going to solve all the questions. A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. एक रेक्टेंगल के ऊपर ये विंडो है ऐसे semicircular. This part is semicircular. Okay. Window is this one. Take. The total perimeter of the window is 10 meter. The total perimeter here. That यहाँ से लेकर ऐसे चल के ये टोटल जो है वो दिया हुआ है 10 meter. So you can say if this side I have taken x and this is as 2y because we have to take the radius of the semicircular part, so radius becomes y. So what is the length of this window perimeter? That is 2y plus x and plus pi r. Don't take this one, this is not the perimeter, ये perimeter नहीं होगा. So pi r के जगह y हो गया plus pi y. This is the perimeter of the window. 2y plus 2x plus pi y. And you are required, the total perimeter is given constant. So y and x are the two variable. X is the, you can say in the respect of width, and y is the length. वैसे इसको कहते हैं height and length, खिड़की दरवाजे में लगा होता है. So here this function is conversion, x in terms of y or y in terms of x. Question is, find the dimension, find the value of x and y of the window to admit maximum light through the whole opening. इस पूरे opening से maximum light आए, तो जब maximum area होगा तभी ना maximum light आएगा. So here we have to discuss about the area. Area is what? Rectangular part, that is x into 2y, यानी 2xy, and half of area of the semicircle, half pi r square. R is y square, half y square. Here convert, यहाँ y square है, यहाँ y है, तो easy to convert it. x को हम लोग convert कर लेंगे. क्या करेंगे? p minus 2y minus pi y by 2 as x. और 2x को convert कर लेंगे 2. So what we write? a equal to 2x के बदले में p minus 2y minus pi y into y and plus half pi y square. और ये हमारा फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ y, तो dA by dy करेंगे, और फंक्शन की में ये dA इसका डबल डिफरेंशिएशन फॉर सम वैल्यू ऑफ y you will get the negative value, so you can solve it. So can I leave this question for you? Can I? Now one more question I am going to take. Just I am going to leave for you. Just find the solution. Treat dA by dy, then find the value of y, and for finding the value of x and y you have to come here p the perimeter. Perimeter is given to be, now p is what? 10. Mind it, it is 10. नेक्स्ट में जब निकालने लगे, अभी तो p से भी काम चल जाएगा. 10 minus 2y minus pi y as 2x. x निकालना है, आप उसे कर लोगे. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. हाँ, तो 9 बोला था ना, 9. टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस. एक टैंक है, rectangular base with and rectangular side, open at the top. So area of the tank, but how can you find that area? It is given
ओके, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते. कंस्ट्रक्टेड इन द डेप्थ गिवन, h is given 2 meter. Volume is also given 8 meters. Now you know volume of cuboid is LBH. H is 2, V is 8, so LB equal to 4. ओके, ये एक रिलेशन आ गया. ये फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन में दूसरा अभी टेस्ट करने के लिए. इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर मीटर स्क्वायर, बेस का रेट अलग है. कॉस्ट ऑफ बेस एट द रेट ₹70 पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट LB होता है बेस. सो LB इंटू 70, LB की वैल्यू 4, सो ₹280. ओके, कॉस्ट ऑफ वाल्स, 4 वाल्स क्या है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और उसका रेट दिया हुआ है 45 पर, तो इसको 45 से इंटू कर देंगे. अब यहाँ पर क्या है कि H गिवन है 42 2 इंटू L. अब B को भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 4/L से, और प्लस 2 इंटू 45, सो इट इज़ 180 L प्लस 4/L. ये कॉस्ट हो गया वाल का. तो हमारे यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन हो गया C एस 280 प्लस 180 L प्लस 4/L. ओके, यही हमारा फंक्शन हो गया. इसी को हमें टेस्ट करना है. LB इक्वल टू 4. सो DC बाई DL, 280 0, 180 L का 1, और ये हो गया -4/L स्क्वायर, -4/L स्क्वायर. क्लियर. इसी को हम इक्वेट करेंगे 0 से. 1 - 4L स्क्वायर इज 0. तो यहाँ से L स्क्वायर हो गया 4, यानी L हो गया 2. -2 नहीं लेंगे बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव. L डायमेंशन निकल गया, तो B भी 2 हो जाएगा ना यहाँ पर. Now again from here we differentiate it with respect to L also. What you get, 180 into 1 is 0 and -4L square. 180 तो है ही, प्लस हो गया. This is 720, और ये L स्क्वायर का यहाँ पर 2 और आएगा और L क्यूब हो जाएगा. All is positive. So D square C by DL square when L is 2, 720 into 2 by 2 cube. कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, we know that it is positive. That means L equal to 2. L equal to 2 is the point of local minima. Positive आया है. Therefore L equal to 2 is point of local minima. So what is the minimum cost? Minimum cost क्या था हमारा, वो 280 था प्लस 180 L प्लस 4/L था. L प्लस 4/L था. सो इट इज 280 प्लस 180, L की वैल्यू 2 प्लस 4/2 कट के 2 to 4, 280 प्लस 720, I think it is ₹1000, the cost of constructing the tank with different sets of rate. बेस थोड़ा मजबूत सीट से बना होगा, तो बेस को बनाने में ₹70 पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्स को बनाने के लिए थोड़ा कम पैसा यूज़ किया गया, थोड़ा पतला भी चलेगा, तो उसको यूज़ किया. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. आई हैव डन इट फॉर यू. एक्चुअली हमको समझाना था, लेकिन हमने आपको पूरा बता दिया. आई एम गोइंग टू टेक वन मोर नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज very some types of difficult, I can say, that maximum area of an isosceles triangle inscribed in an ellipse, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now I am going to take in this position. This is the equation of ellipse, x square equal to 1, and in this ellipse an isosceles triangle की maximum area निकालनी है with its vertex at one end point of the major axis. ये major axis होता है, इसके वन मतलब यहाँ पर है,
इलिप्स चूंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो वट एवर द थर्ड साइड मस्ट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। इसको मान ऐसी वर्टेक्स माना ए बी सी। ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, and we are required to find the area of the triangle ABC to be, अच्छा इसका क्या वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट हो गया A0 बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को बनाते समय हम पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में कंसल्ट करेंगे। आपको ये सोचना होगा कि ये कौन सा जो है, मतलब वेरिएबल तो यहाँ पर कई होगा, इसको कैसे हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बी एंड सी का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ हेल्प करेगा हमारा इसका पैरामीट्रिक फंक्शन एज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। If you will take this one, you will find that the equation is satisfied. Now what is theta here? उस पॉइंट का जो है थीटा हमारा जो है सेमी वर्टिकल, मतलब ये थीटा जो होता है उस पॉइंट का इसके साथ इंक्लाइनेशन होगा, ठीक है ना। पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है ये, जो अगर हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले एक्स एक्सिस पर, यहाँ से इसको PM मानेंगे, तो ये लेंथ हमारा होगा a cos थीटा, ये लेंथ होगा b, मतलब ये वाली लेंथ b साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर रख लो आप इसको, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है या नहीं होता है। So this is parametric equation and this is the part of not in your, मतलब क्या बोल देंगे उसको, आपके सिलेबस में तो है नहीं कि सब यह है, कि बस ये समझ लो कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया किसका, B का। C का क्या होगा, चूंकि अब पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है तो ये हम लिखेंगे a cos थीटा b साइन थीटा, और नीचे वाले को लिखेंगे a cos थीटा एंड माइनस b साइन थीटा। So what we have the vertices of the triangle ABC. Now you see that this AB, this line is perpendicular to this one. What length is AM? AM का लेंथ बताइए। पूरा OA A है और OM जो है A cos थीटा है। So the height you can take, आप तीनों साइड का वो जो फॉर्मूला है 3 कॉर्नर से 1/2 x1 y2 माइनस वो ना लेके आप सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे जाइए, 1 माइनस कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द लेंथ BC? BC a cos थीटा ऊपर नीचे दिया हुआ है, ये सॉरी b sin थीटा b sin थीटा, इट इज नथिंग बट 2b sin थीटा। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 2b sin थीटा and height is a into 1 minus cos theta. So you can take 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे, AB area as AB sin theta into 1 minus cos theta as the function on which we are going to find the maxima and minima. क्या है, AB sin theta into 1 minus cos theta। क्या लिखा, एरिया क्या था, ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एज ए इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ए बी कॉन्स्टेंट इसको बाहर रख लो, साइन थीटा को छोड़ दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, माइनस इज माइनस और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, सो इट इज प्लस साइन थीटा। देन 1 माइनस कॉस थीटा को छोड़ दिया, कॉस साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा। सो दिस इज डी ए बाई डी थीटा, that is AB sin square theta plus cos theta minus cos square theta। थोड़ा सा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ध्यान पे होंगे, cos थीटा इज पॉजिटिव, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होता है. सो ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा. यहां से हमें क्या करना है, आपको इक्वेट करना है जीरो से, सॉरी, डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो. तो फ्रॉम हियर यू कैन गेट दैट ए बी तो जीरो होगा नहीं, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू जीरो. So you can say that cos theta equal to cos 2 theta. Either you will get theta equal to 2 theta or theta equal to 2 pi minus 2 theta. प्रिंसिपल वैल्यूज पे अगर हम लोग काम करें तो ठीक है ना. फ्रॉम हियर थीटा इक्वल टू 2 थीटा, अगर थीटा को इधर माइनस कर लें तो थीटा बिकम्स जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है, थीटा जीरो हो नहीं सकता. तो यहाँ से दूसरे से आएगा थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3. तो ये वो पॉइंट हुआ जहाँ पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा का टेस्ट करना है, ठीक ना. थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3. एरिया इज ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो अब हम लोग चलते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन पे और इसको लेंगे ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3. व्हाट इज डी ए बाई डी थीटा? dA by d theta is AB into cos theta minus cos 2 theta. Now double differentiate करो इसको आप. AB constant, cos theta is minus sin theta and minus cos theta is plus 2 sin 2 theta. अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन की इस लेवल पे आ गए हैं. एक स्टेप यहाँ लिखा जाना चाहिए जरूर, डी थीटा ऑफ cos theta माइनस डी डी थीटा ऑफ cos 2 theta. बट डिफ्रेंशिएशन करते समय हम यहाँ पर आ सकते हैं. Now d square a by d theta square when theta is 2 pi by 3. Theta is 2 pi by 3. What you will find? Minus sin 2 pi by 3 plus 2 sin 4 pi by 3. Okay. AB. Sin 120 वही 60 रूट 3 by 2 के बराबर होता है और 2 pi by 3 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो 2 इंटू इसकी भी वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3 यानी वही माइनस रूट 3 बाई 2. सो एज ए होल यू कैन से इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी. इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी. सो व्हाट यू फाइंड दैट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ओके, सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 2 पाई बाई 3 एंड क्वेश्चन इज व्हाट? You have to find the maximum area. So maximum area of that triangle is AB sin 2 pi by 3 1 minus cos 2 pi by 3. Okay, AB sin 2 pi by 3 is what? Root 3 by 2. 1 minus cos 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3 is minus 1 by 2 यानी plus 1 by 2. So it is 3 by 2. So 3 root 3 by 4 into AB is the, अब यहाँ पर कोई यूनिट तो है नहीं तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे. स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट आइसोसेलिस ट्राइंगल. एरिया ऑफ द आइसोसेलिस ट्राइंगल 3 root 3 AB by 4 square unit. Area of the isosceles triangle. Inscribed an ellipse with the condition that its one vertex is always through which the equal side passes through. So vertex lies on the vertex of the ellipse. So its base of the isosceles triangle must be perpendicular to the axis of the ellipse. Okay, moving towards next question. I am going to take the question number 12. And that question needs some more space and very complicated type of the. So here we have to write down somewhere this required conditions. So the question is that in a right triangle ABC, a point is on a hypotenuse, let it the point be P,
विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द अदर टू साइड्स। मान लो इसको ए और इसको बी मान लिया, परपेंडिकुलर है, इसको आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना। तो मान लिया हमने कुछ, जैसे ए मान लिया और बी मान लिया। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब AC का जो है लेंथ वो मिनिमम होना चाहिए। अब किसी भी वैल्यू पर वो क्या होगा, A का पावर 2/3 प्लस B का पावर 2/3 द होल पावर 3/2। एज यू थिंक दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो फॉर दैट we have to go for some trigonometric function. Let the angle between these two angle theta, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा हमें AC का लेंथ निकालना है। तो AC की लेंथ के लिए हमने एंगल इसलिए चूज किया है कि दो ट्रायंगल में हमने जो ये एंगल लिया है उसमें एक A और PC से रिलेट करेंगे, दूसरे में B और AP से रिलेट करेंगे। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड in right triangle PMC, इस एंगल के लिए PM by PC is what, sin theta। चूंकि हमें PC की बात करनी है तो PC is what, PM by sin theta। PM is A by sin theta, that is A cosec theta। PM PC हो गया। और in right triangle ANP, अब यहाँ B है, B और इस H में, तो cos थीटा की बात अगर आप करोगे तो आपको आएगा PN by AP, बट AP निकालना है आपको। तो AP इक्वल टू N इज B by cos, तो B sec थीटा। तो आपका जो AC हुआ वो हो गया AP प्लस PC, दैट इज B sec थीटा प्लस A cosec थीटा। अब हुआ क्या कि थीटा हमने इसलिए लिया कि अब हमारा जो ये है इसको निकालना है AC को आप कोई मान लो लेंथ, जैसे आप कुछ भी मान सकते हो। H हाइपोटेनस है तो H हमने मान लिया। तो H इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ A and B आर कांस्टेंट। H इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज B sec थीटा प्लस A cosec थीटा। अब इसमें से A और B आप कुछ भी ले सकते हो, इसको B इसको A ले सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इस पर हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला चूंकि H फंक्शन ऑफ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कॉसेक थीटा का अब माइनस हो जाएगा वो, तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हमारा DH बाई डी थीटा हो गया, ठीक है ना। अब इसको इक्वेट करना पड़ेगा हमें किससे, जीरो से। ध्यान रहे थीटा मस्ट बी, हमने अभी यहाँ पर फिलहाल एक्यूट राइट एंगल है 90 है, तो जो भी थीटा होगा आइदर C और A पे वो 90 से छोटा होगा, यानी इट्स एन एक्यूट एंगल 0 to π/2 के बीच में। तो DA बाई डी थीटा को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, DH बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, B सेक थीटा टेन थीटा A कॉसेक थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालने में जा रहे हैं चेक करते हैं। पहले ऊपर मिटाना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा कुछ चीज़ों को। इस बीच में मैं लिख लेता हूँ इसको कहीं और। B सेक थीटा को लिख दिया हमने 1/cos, tan को sin बाई cos, B sin थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए tan से cos कॉट साइन कॉस में रिलेटेड है, तो बेटर है कि हम लोग साइन कॉस में इसको लिख लें। सेक 1/cos साइन बाई कॉस, साइन बाई, और ये हो जाएगा A 1/sin cos बाई साइन, A cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको इधर ले आओ, यू विल फाइंड दैट वी हैव tan क्यूब थीटा इक्वल टू A बाई बी। साइन स्क्वायर लाया साइन क्यूब, कॉस नीचे लाया कॉस क्यूब, साइन क्यूब बाई A बाई बी। So what is tan theta? Tan theta is A by B the whole power 1/3। इसको ध्यान में हम लोग रखते हैं। देखिए हमें वहाँ पर क्या था, A का पावर 2/3 प्लस B का पावर 2/3 को 3 to the power 2 लाना है। A का पावर 2/3 प्लस B का पावर 2/3, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर हमारे पास tan थीटा आया है 1 प्लस B रेज टू द पावर 1/3।
हमारे पास सेक थीटा भी है, हमारे पास कॉसेक थीटा भी है, हमारे पास कॉट थीटा भी है, हमारे पास सब कुछ है। अब इधर से ही हमारा रिलेशन सारा कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है टेन थीटा से। ये हमारा फंक्शन था बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ये तो डिफ्रेंशिएशन के पहले बात था। पहले था हमारा बी, सॉरी क्या था वो, बी ए साइन ए कॉसेक थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। ये था हमारे लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। ओके, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखना है केवल कि उसमें आएगा। अब डी ए बाई डी थीटा जो था हमारा, डी ए बाई डी थीटा जो था जिससे ये निकल के आया, वो क्या था, वो तो इक्वेट करके जीरो कर लिया था ना। डी ए बाई डी थीटा था बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब इसको फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये डिफ्रेंशिएशन थोड़ा लंबा जाएगा, इसको ध्यान से रखिए। कैसे, दोनों में प्रोडक्ट लगेंगे, डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर, बी सेक थीटा को छोड़ा टेन का हुआ तो सेक स्क्वायर, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा को छोड़ा सेक को किया तो वो हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक। फिर माइनस ए कॉमन लेते हुए ये हो गया बी का, ए कॉमन लिया माइनस भी ले लिया, कॉसेक थीटा को छोड़ा तो कॉट का माइनस कॉसेक, तो ये हो गया माइनस कॉसेक क्यूब लिख देते हैं। अब फिर दूसरा में भी माइनस ही आ जाना है, कॉट थीटा को छोड़ेंगे और कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक, तो ये माइनस लगा दिया, कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो यहां से माइनस माइनस निकाल के प्लस कर लेंगे, डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज व्हाट, बी सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस लिया प्लस ए कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। Now clearly you see all things are positive. So if you put tan theta, मतलब यहाँ tan theta के हेल्प से अगर हम ये सारी वैल्यूज निकालते हैं, सपोज कर लो, तो जो कोई भी वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव ही होना है, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव टर्म्स। सो डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर व्हेन थीटा इज सच दैट इट्स tan इनवर्स a by b root 1 by 3 is going to be positive, going to be positive. That means area, the length of the hypotenuse be minimum. That point is point of local minima. Is it clear? वहाँ पर उसको वैल्यू पुट करके कैसे निकालेंगे वो सब करने की जरूरत है, क्योंकि सारे चीज़ हमारे पॉजिटिव थे। सो देयरफॉर tan theta is equal to a by b raised to the power 1 by 3 is point of local minima. So minimum length of hypotenuse AC होगा at, कहाँ पर होगा, थीटा एस tan इनवर्स a by b। हम लोग लिखेंगे थीटा tan थीटा की वैल्यू कैसे था, इट इज था a cosec थीटा प्लस b sec थीटा, यही था हमारा लेंथ। अब देखिए कैसे हम लोग करते हैं। cosec थीटा इज व्हाट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास tan दिया हुआ है टर्म्स में, ठीक है ना। तो अगर हमारा tan क्यूब थीटा a बाई बी है तो कॉट क्यूब थीटा b बाई ए हो जाना है, इसको ध्यान में रखिए। सो कॉट थीटा इज b बाई ए रेज टू द पावर 1 बाई 3, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, प्लस b रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान से रखो, a इंटू 1 प्लस b बाई ए रेज टू द पावर 1 बाई 3 है 2 बाई 3 प्लस b इंटू 1 प्लस
a by b raised to the power 2 by 3. Clear? Now from here a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 by a raised to the power 2 by 3. ठीक, plus b into again b raised to the power 2 by 3 plus a raised to the power 2 by 3 and b raised to the power 2 by 3. बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा मजेदार चीज आ रहा है। इसको ये ध्यान में है, ऊपर वाला मिटाता हूं मैं। ये मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज हो रहा है। देखिए न्यूमरेटर में a, इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे a, ये a 1/3 हो जाएगा और रूट के अंदर ऊपर में a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 रहेगा। ठीक उसी तरह यहाँ b और b का पावर 2/3 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो b रेज टू द पावर 1/3 बचेगा और यहाँ भी रूट के अंदर b रेज टू द पावर 2/3 प्लस a रेज टू द पावर 2/3 मीन्स a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3। यानी दोनों में देखो ये चीज कॉमन है, आप उसको ले लो कॉमन। ठीक, यहां क्या बचा और यहां ये बचा। इसको ध्यान से देखिए क्या आ रहा है आपके पास। a by a का पावर 1/3 यू विल गेट a का पावर 2/3, यहां भी b का पावर 2/3। तो देखिए यहाँ a का पावर 2/3 b का पावर 2/3, यहाँ भी a का पावर 2/3 b का पावर 2/3, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर हाफ। ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से जो मिनिमम लेंथ ऑफ AC हुआ, हाइपोटेनस हुआ, वो 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 हाफ प्लस 1 इज 3/2 and we have proved the question that the minimum length of the hypotenuse when the point P, which is at a distance of a and b unit respectively from the perpendicular side, is a raised to the power 2/3 plus b raised to the power 2/3 and whole raised to the power 3/2. Now again question maximum minima 13, question number 13। ये थोड़ा अलग किस्म का है। क्वेश्चन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x माइनस 2 रेज टू द पावर 4 x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 हैज फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस हैज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन। ऑल द पॉइंट्स, ऑल द 3 कंडीशन वी हैव टू टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x प्रोडक्ट रूल इस पर लगा रहे हैं। 4x माइनस 2 क्यूब और x माइनस 2 का 1 हो जाना है और x प्लस 1 का होल क्यूब छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम इस पे लगाया तो x माइनस 2 का होल पावर 4 छोड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का अगेन 1 हो जाना, तो इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, नाउ हमने इसको इक्वेट किया 0 से, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ से मैं x माइनस 2 का स्क्वायर क्यूब और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। x माइनस 2 क्यूब और x प्लस 1 स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से आया मेरे पास 4 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ से आया 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, कॉमन लेना जरूरी है, इक्वल टू 0 वैल्यू निकाल रहे हैं। सो x माइनस 2 क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज 4x प्लस 3x 7x 4 माइनस 6 that is minus 2 equal to 0. So we will get a point minus 1, 2/7 and 2. There are 3 points. Now अब ये चूंकि बड़ा सा फंक्शन है, इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करके बारी बारी से चेक करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो बेटर क्या है कि हम इसको चेक करते हैं वही चेंजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर चेक करते हैं कहाँ पर, किसी भी एक पॉइंट पर ले लीजिए। सबसे पहला हमने -1 ले लिया है, तो -1 को चेक करते हैं, यानी x बिलोंग्स टू -1 माइनस h से -1 एंड x बिलोंग्स टू -1 टू -1 प्लस h। यानी जब x प्लस 1 1 से बड़ा हो, x प्लस 1 जब 1 से बड़ा हो, सॉरी 0 से बड़ा हो,
तो व्हाट इज एफ डैश एक्स? तो x प्लस वन अगर x माइनस वन से बड़ा है कुछ, अच्छा चूंकि ये दो अलग अलग चीज़ें भी हैं, हम थोड़ा सा रखते हैं माइनस वन से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी, जस्ट -0.9, यू विल गेट माइनस समथिंग एंड माइनस माइनस का ये टर्म हमारा निगेटिव हो जाना है, पहला वाला टर्म निगेटिव, चूंकि स्क्वायर है पॉजिटिव, और फिर यहाँ से ये माइनस ही कुछ होगा तो ये माइनस, तो व्हाट यू विल फाइंड दैट इट्स अ पॉजिटिव नंबर, it's a positive number. Again in the next interval -1 से थोड़ा सा बड़ा, ये सॉरी यहाँ -1 से थोड़ा सा छोटा -1.1, अगर मैं -1 से थोड़ा सा छोटा बड़ा करूँ तो अगेन यू विल फाइंड दैट एफ डैश एक्स इज -0.9, ये अगेन माइनस में ही रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए प्लस हो जाना है इसको, और ये क्या है -1 से थोड़ा सा छोटा बड़ा हुआ -0.9, अगेन इट इज अ माइनस क्वांटिटी. So you will find it is also positive. That means f dash x does not change its sign through x equal to -1. So what does it mean? That x equal to -1 is the point of inflection. So third question का आंसर जो point of inflection हमें पूछा है वो x equal to -1 हो गया. Clear? So x equal to -1 is point of inflection. X equal to -1 is point of inflection. Okay. Now we have to test about 2/7 and 2. Now this is the same. तो यहीं पर हम लोग इसी जगह पे चेक करते हैं. यानी x को बिलोंग कराते हैं 2/7 माइनस h से 2 तक, 2/7 तक सॉरी, एंड दूसरे बार में चेक करेंगे 2/7 से 2/7 प्लस h तक, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी. 2/7 समथिंग जो 2/7 है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है. अब उसमें से थोड़ा छोटा क्वांटिटी लेते हैं तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव ही होगा, तो निगेटिव ही एक कहाँ निकल आएगी. तो ये पहला वाला जो ब्रैकेट है जो क्यूब होना है वो निगेटिव रहेगा, चूंकि ये स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाना है. बट ये नंबर जो है, सिंस वी हैव टेकन x इज लेस देन 2/7, तो 7x minus 2 is less than 0, so it's also negative. So what do we find? That the f dash x is positive. Something greater than 2/7, something greater than 2/7. Okay, 2/7 यहाँ कुछ भी होगा, 2 minus something near about 0 is again negative. So here again you find the first bracket जो कि क्यूब है वो निगेटिव ही रहेगा, सेकेंड वाला स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाना है, और ये चूँकि इसको हमने कहा है कि वो 2x से बड़ा है 2/7 से, तो ये 7x minus 2 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एज ए होल वी फाइंड दैट निगेटिव. सो व्हाट वी फाइंड दैट f dash x changes sign from positive to negative. Positive to negative. That means x equal to 2/7 is point of local maxima. इन्फ्लेक्शन निकल गया, मैक्सिमा निकल गया, तो सर्टेनली जो 2 होगा वो जरूर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा. x equal to 2/7 मैक्सिमा का पॉइंट हो गया. अब 2 पर चेक कर लेते हैं. x belongs to 2 minus h, 2, x belongs to 2, 2 plus h. Okay, f dash x, x is less than 2, x minus 2 is less than 0, यानी निगेटिव. तो फर्स्ट ब्रैकेट निगेटिव, स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव. x is something less than 2, let it be 1.9, तो 7 into 1.9 ये तो 14, ये टर्म हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि निगेटिव. नाउ हियर इट कम्स इन द नेक्स्ट पार्ट, ग्रेटर देन 2, x माइनस 2 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो उसका क्यूब पॉजिटिव हो गया. सेकेंड वाला स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और ये चूंकि 2 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव होना ही होना है. तो व्हाट वी फाइंड
that f dash x is positive. So what you think here? F dash x changes its sign from negative to positive. कहाँ से? Through x equal to 2. So x equal to 2 is point of negative to positive. X is point of लोकल मिनिमा. क्लियर है? सो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने तीनों पॉइंट डिस्कस किया और थोड़ा सा रिकॉल किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, मैक्सिमा मिनिमा का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन a typical type of question. Let f be a function defined on closed interval ab such that f dash x is greater than 0 for all x belonging the open interval ab. For all x belonging open interval, then prove that f is an increasing function in open interval ab. Okay, मान लो हमारा इंटरवल दिया हुआ है, f is function is defined in closed interval, question number 16, and it is given that f dash x is positive for all x belonging open interval. हमें प्रूव करना है कि जो f है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कहे सर ये तो पढ़ाई था हमने कि f dash x जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब वो 0 से बड़ा हुआ, बट वो ओपन में था. इंटरवल में हम लोग चेक करते हैं कैसे करेंगे. चलिए, हाउ कैन यू गेट द सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन? ऐसे कह देने से थोड़ी हो जाएगा. नाउ इन द इंटरवल वी जस्ट लेट there is 2 point x1 and x2 on x-axis such that x1 is less than x2. ले लिया हमने इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में. अब अगर हम मीन वैल्यू डिफाइंड है फंक्शन क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल भी f dash x निकला हुआ है, तो सर्टेनली जो उसका एक पॉइंट c मिलेगा जहां पर fx2 माइनस fx1 उन दो पॉइंट पर क्या होने चाहिए? ऐसा होना चाहिए. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ध्यान रहे c लाइज बिटवीन x1 एंड x2. यहां पर c क्या है? वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है कहीं भी, ऐसे आप कह सकते हो. तो ये हो गया आपका fx2 माइनस fx1. सिंस x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2. अच्छा, f dash c क्या है? पॉजिटिव है. f dash x क्या है? f dash c इज पॉजिटिव. और x1 x2 नीचे से डिवाइड इसलिए किया है कि वो इक्वल नहीं है, तो 0 नहीं होगा. तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर? x1 इज लेस देन x2. अच्छा, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिया ही हुआ है. सो हम कहेंगे कि f dash c as f dash x positive and c is any point between x1 x2, so f dash c is also positive. x1 is less than x2, so we can say that x2 minus x1 is also positive. The whole thing you can say that fx2 minus fx1 is a positive quantity. Is a positive quantity. That means fx2 is greater than fx1. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, fx1 is less than fx2. Here from here we have taken x1 is less than x2 and we have proved that fx1 is less than fx2. What does it mean? It means the function is strictly, the function f is strictly increasing in the domain AB. Is it clear? So this way you can do the question number 16. Since we have taken a question from increasing and increasing function, so मैक्सिमा मिनिमा का जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 17 है, 18 है, इसको फिर से मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ
है ना। मैं क्वेश्चन आ जा रहा हूँ वापस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक क्वेश्चन ले रहा हूँ पीछे से, कोई छूटा हुआ क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये ले लिया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स, इंटरवल फाइंड आउट करना है। 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x बाई 2 प्लस cos x। इंटरवल हमें चेक करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटरवल चलाएगा किसमें, पाई वाले इसमें। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द इंटरवल, पहली बात तो है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है और क्या करना है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा कुछ इजी नज़र आ रहा हो तो उसको ज़रूर कीजिए। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर इसमें से x कॉमन लूँ तो cos x प्लस 2 आ जा रहा है। तो पूरा इतना बड़ा ना लेकर अगर मैं 4 sin x बाई 2 प्लस cos x कर लूँ और फिर माइनस कॉमन लेके x 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस cos x कर लूँ, इसको कैंसिल किया जा सकता है, बिकॉज 2 प्लस x इज ऑलवेज पॉजिटिव। x cos x की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में है, तो 2 प्लस वट एवर द वैल्यू ऑफ cos x में भी इट इज ग्रेटर देन 0। तो व्हाट वी हैव 4 sin x बाई 2 प्लस cos x एंड माइनस x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना इसके मुकाबले थोड़ा सा आसान हो गया भाई, क्वोशिएंट रूल उसमें भी लगना है लेकिन न्यूमरेटर वहाँ बहुत बड़ा था। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं भाई, एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना। तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट वाले पार्ट में होल स्क्वायर किया, 2 प्लस cos x छोड़ा और 4 sin x डायरेक्ट ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 4 cos x, उसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस 4 sin x को छोड़ दिया और 2 प्लस cos x का 0 माइनस sin x यानी माइनस sin x हो गया, ठीक, एंड माइनस x का 1। क्लियर, GDX आप लगा लेना, वो आपके लिए है। अब 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, आप चाहो तो ये जो टर्म है उसको एक साथ क्लब कर सकते हो एलसीएम लेके, तो -2 प्लस cos x का होल स्क्वायर पूरा एक साथ कर लिया हमने। हालांकि इसके बाद हमें उसको इक्वेट करना है 0 से, नहीं भी करते तो चल सकता था, उसको एक को उधर जाते। हाँ चलिए ठीक है, जो भी किया। अब आगे थोड़ा ऊपर मिटाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तो हमें इंटरवल निकालना है, इसलिए फैक्टर वाले पोर्शन को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स की पोर्शन को। ओके, सो व्हाट वी हैव 8 cos x, एफ डैश एक्स क्या हो गया 8 cos x। अच्छा, 4 कॉमन लेंगे, 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर में से 4, तो 4 इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इट बिकम्स ओनली 4। ओके, एंड 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर आप करो तो 4 आएगा और माइनस हम ब्रैकेट तोड़ते 4, फिर माइनस cos स्क्वायर x जो प्लस cos स्क्वायर अंदर में एंड प्लस 4 cos x, तो -4 cos x, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। So from here 8x minus 4x is 4 cos x and minus cos square x by 2 plus cos x का स्क्वायर। अब यहाँ से cos कॉमन ले लो आप, 4 minus cos x by 2 plus cos x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हमें इक्वेट करना है 0 से, ठीक है ना, यही एफ डैश एक्स आया। तो एफ डैश एक्स अगर 0 हुआ तो इसका मतलब cos x 4 माइनस cos x एंड 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये 0 हुआ। अब किसी भी फ्रैक्शन में अगर 0 होता है तो न्यूमरेटर ही 0 होगा, तो इसका मतलब cos x 4 माइनस cos x 0 होगा। अब सिंस cos लाइज बिटवीन -1 to 1, therefore 4 minus x cannot be 0. So what you find that cos x is 0. Cos x is 0. And in this question, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका इंटरवल हमें इंटरवल निकालना ही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
तो यहाँ से हमें cos x की जो वैल्यू निकल रही है 0, तो अब cos x 0 कहाँ कहाँ पे होगा, देखिए cos x is equal to 0, तो you can find the value, you can, आप यहाँ से आप दिखा सकते हो, इस पर्टिकुलर वैल्यू से दिखा सकते हो कि cos x, जैसे हमारा f डैश x आए cos x 0, तो x की वैल्यू π/2, 3π/2 एक्सेट्रा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं 0 ना करूँ, मैं सीधे यहाँ से चलूँ, f डैश x cos x 4 माइनस cos x 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। भाई इंक्रीजिंग कहाँ होगा, जहाँ f डैश x पॉजिटिव हो, डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जहाँ f डैश x नेगेटिव हो। तो यानी कि ये पॉजिटिव पूरा हुआ तो इंक्रीजिंग, निगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग। नाउ फाइंड इट, 4 minus x cannot be going to negative or equal to 0. 2 plus x cannot be going to equal to 0 or less than 0. So these two are not making any sense to make it positive or negative. So only we have to find in which quadrant cos x is positive and in which quadrant cos x is negative. And since it is required only to find increasing or decreasing, so equality sign hold. So f dash x positive means cos x positive, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। और लेस देन इक्वल टू कहाँ कहाँ होता है, इससे अगर हुआ, अगर हम एक इंटरवल में ले लें तो x कहाँ कहाँ जाएगा, 0 से π/2 पे एंड 3π/2 से 2π तक, ठीक है। और cos x निगेटिव कहाँ होगा, तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सीधे सीधे π/2 से 3π/2 तक। ये इंटरवल हुआ डिक्रीज करने का और ये इंटरवल हुआ दोनों का यूनियन इंक्रीज करने का। हमने यहाँ पर सिर्फ 0 से 2π के बीच का लिया हुआ है, आप उससे आगे भी बढ़ा सकते हो, है ना। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द find the intervals of the function increasing and decreasing, there is no such intervals are given up to what। तो हमने एक उसका जो क्या कहते हैं पीरियड है, उस पीरियड में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसी पीरियड को आगे पीछे आप करते रहिए, प्लस करते चले जाइए, आपको अगला इंटरवल मिलता चला जाएगा। सो दिस इज वन क्वेश्चन आई हैव टेकन इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आई थिंक अप्रोक्सीमेशन आप लोग कर लोगे, है ना। और क्वेश्चन जो है इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कैन इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर भी, जिस वन अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था, इसको कुछ दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, ट्राई करना। इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, यू विल फाइंड एट समवेयर सम डिफिकल्टी और समवेयर यू विल फाइंड देयर इज नो डिफिकल्टी। सो after this one, I'm going to give you some idea about the, here you will find the miscellaneous exercise, solve the miscellaneous exercise of the chapter 6, and from here I will try to give some idea about the 2020 question. Set number 1, what I find that in set number 1 we have questions from the topic, yes, you should write the one question, the number of points of discontinuity of f defined by fx is equal to mod x minus x plus 1 is, और ये fill in the blanks का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन। सेकेंड दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 है फर्स्ट सेट में, द स्लोप of the tangent
to the curve y equal to x cube minus x at the point 2 6 is at the point 2 6. नहीं दिख रहा हो तो मेरी आवाज भी सुनते रहिएगा. 2 6 is अगेन इसमें और भी दिया हुआ है. the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equal to 3 centimeter is. Again fill in the blanks. So these are the two questions in which one has some options, one option. Fill in the blanks. You are discontinuity, as you said, the difference of two modulus function. Again certainly it is a two, there are 2 point of discontinuity at one at x, point of discontinuity. So you have to discuss it whether how many point of discontinuities are there. Only number, not the point of discontinuity, number of the point of discontinuity. Okay, this question has the function is not differentiable at 2 point. I am not discussing about the discontinuity. Here you are asked to find the number of points of discontinuity. So first you redefine the function and then try to find the function of discontinuity. The next in section B, that is the of question number of the marks 2. The question number 22 is find the value of dy by dx at theta equal to pi by 3 if x is cos theta minus cos 2 theta. It is, I think, from book, NCERT book. Sin theta minus sin 2 theta. 2 marks question. So dy by, पहले dx by d theta निकालोगे, dy by d theta निकालोगे, फिर dy by dx is what? dy by d theta by dx by d theta. एक फंक्शन आएगा, थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा pi by 3, you will get the. This is question number 22 of 2 marks. Again the question number 23 2 marks. So हमने पहले बताया था 1 marks हो गया, 1 marks हो गया, 2 marks हो गया, next 2 marks. That so that the function f defined by fx is equal to x minus 1 ex plus 1 is an increasing function for all x greater than 0. This is the 2 question of 2 marks. Then moving the section C of 4 marks. The question number 28, sorry. If y equal to sine inverse root 1 plus x plus root 1 minus x divided by 2, y is given that, then so prove कीजिए dy by dx is minus 1 by 2 root under 1 minus x square. This is a 4 marks question and there is option here. This is a question of differentiability, inverse difference, and then verify. The paper is trying to touch all the part. आपने जितना पूरा तैयारी कर रखा है उसमें से देखिए, verify the Rolle's theorem for the function fx equal to ex cos x in the closed interval minus pi by 2 to pi by 2. Rolle's theorem को डिस्कस किया, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया. उधर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या डिस्कस किया, एक था वही पैरामेट्रिक फंक्शन को टच किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को टच किया 1 मार्क्स में, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड टेंजेंट नॉर्मल को टच किया. फिर आपका उसमें एक क्वेश्चन और भी था, वो क्या था कि उसमें था स्लोप के साथ साथ नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी को भी टच किया और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियाज को भी, मतलब रेट फर्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था उसको भी टच किया.
अभी देखिए अप्रोक्सीमेशन हम लोग के पास नहीं आया, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सी में हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया एक। तो 4 to 6 to 8, 8 to 10, one question of 6 marks it comes. This is question number 28. And then I'm moving towards the question number, which one is there? I think 29. That's section D. Section D, the question is 34, number is 34. Find the intervals. The increasing का एक और क्वेश्चन आ गया, एक 1 मार्क्स का है। Find the intervals on which the function fx equal to x minus 1 whole cube, x minus 2 whole square is number 1 strictly increasing, नंबर 2 दैट इज भी दिया हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें और भी है, देख लीजिए और है तो इसने टच कर लिया किसको, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 centimeter, which will sweep out a volume as large as possible. मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम का केस है, as large as possible, as large as possible. ठीक है, as large as possible when revolved, mind it the language, revolved about one of its side, and also find the maximum volume. Find the dimension of rectangle of perimeter 36 centimeter, which will be sweep out a volume as large as possible. यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ 36। अब ये अपने किसी साइड के अबाउट रिवॉल्व होगा, इस तरह घूमेगा पूरा, रोटेट नहीं, मतलब एक को फिक्स कर देंगे, ऐसे फिक्स कर दिया, पंखे की तरह घुमा दिया पूरा, तो यू जस्ट थिंक दैट इट बिकम्स अ सिलेंडर एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर विद द गिवन कंडीशन, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। जैसे आप रिवॉल्व करोगे तो एक साइड उसका रेडियस हो जाएगा, दूसरा साइड उसका हाइट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड इट इन द पेपर। ये मैंने फर्स्ट सेट में दिया, एक आध चेंजेज अगर होंगे तो होंगे, उससे मतलब कुछ खास नहीं है। सो टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक एंड दैट्स, अच्छा ये जो आपका कैलकुलस है पूरा, जो मैंने कहा कि पूरा कैलकुलस में जो आता है राइट फ्रॉम कंटिन्यूटी से लेके ये जो हमने पढ़ा, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब मिला के 38 होता है। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। जैसे इस बार 2020 में अगर 16 नंबर का क्वेश्चन इधर से आया तो ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी वो 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन उससे आए, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कुल मिला के तीनों चैप्टर से जो डिफ्रेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से 38 होंगे, ठीक है ना। तो इसको एक तरह से हम लोग समझिए कि 34 मार्क्स के अबाउट हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, मैंने कवर किया है, एनसीईआरटी से कवर किया है और लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने बनाने की कोशिश करी है। कुछ आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, कुछ एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन केवल एनसीईआरटी ही पढ़ लेंगे तो आपका सब कुछ नहीं हो पाएगा।
तो ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम, लेकिन पहले क्या है कि डायरेक्ट जो है टफ क्वेश्चन में नहीं जाइए। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पहले एनसीईआरटी ट्राई कर लो बढ़िया से। एनसीईआरटी करने के बाद अभी आपके पास पूरा लॉकडाउन पीरियड में जो समय बच रहा है, यू हैव नथिंग टू डू इन स्पाइट ऑफ स्टडी। केवल स्टडी कर लीजिए, बोर होइएगा, थोड़ा बहुत घूम लीजिए इधर उधर, घर में ही, बाहर घूमने का उतना मौका है नहीं। और स्टे सेफ, स्टे एट होम, और कोशिश कीजिए, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से पूरा चीज़ समझाने का। आप पहले एनसीईआरटी कर लो, फिर ग्रेजुअली आप ऊपर उठो, धीरे धीरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जाओ। पहले एक तरफ से जितना पार्ट आपने पढ़ा हुआ है 34 मार्क्स का जो हमने फर्स्ट बुक पढ़ाया, उसको आप कम से कम ये आप कह सको कि नहीं एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे, हायर डिफ़िकल्टी क्वेश्चन भी कर लेंगे। होप यू विल just understand what I am trying to say you. Thank you. Have a nice day.